नमस्कार एवरीवन। नीति शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। तो आई एम गेटिंग यू वीकली राउंड अप टुडे। सो लेट्स डिस्कस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और आज एक ऑपरेशन सिंदूर पे एक राउंड अप आया है। तो शिशिर गुप्ता जो एक बहुत रेनाउंड फेमस जर्नलिस्ट हैं, डिफेंस को सिक्योरिटी को कवर करते हैं हिंदुस्तान टाइम्स में, उनकी तरफ से सुबह आज ये हिंदुस्तान टाइम्स में ये लिखा गया है दैट इंडिया ने 7 तारीख को स्कैल्प और ब्रह्मोस के ज़रिए टेरर कैंप्स मुरीद के बहावलपुर में जो आपको मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, वो हमने यूज़ किया। दूसरा, जो 9 तारीख की रात और 10 तारीख को जो एयर स्ट्राइक्स हुई, उसको लेके उन्होंने बोला है कि एक अवैक्स साब 2000 का S-400 मिसाइल सिस्टम ने 11 बार फायर किया और 315 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर गिराया है। एक F-16 हैंगर में गिरा, हैंगर में डिस्ट्रॉय हुआ है मिसाइल स्ट्राइक में, और एक F-16 एयर कॉम्बैट में गया है। सिमिलरली एक JF-17 जो चाइनीज जेट है, वो भी एक एयरबेस के स्ट्राइक से गया है। उसके बाद चाइना का जो मलेर कैंट है कराची पे, तो वहाँ पे हमारी मिसाइल स्ट्राइक ने ब्रह्मोस ये मेन लिए, तो they took out a HQ-9 Chinese air defense system which is actually like Chinese version of S-300, ठीक है, a grade lower than S-400. Similarly, we also took out the Chinese missile defense system at Chinese Chinese missile defense system at the Walton Air Base in Lahore, ठीक है, through our Hyrope drones, वो भी उन्होंने कंफर्म किया है। सो टेक्निकली जो नोन सोर्सेस से जो खबर है, वो बता रहे हैं कि almost 4 fighter jets have been lost to the Pakistani air base, and including also one C-130 at the Noor Khan air base, which was sawn burning after the BrahMos strike on it. So technically 5 to 6 jets have been eliminated, including couple of drones of the Chinese-made drones and missile defense systems and battery systems. And they also say that the Indian Navy, Armata was ready to hit the Karachi port, and on the 10th morning, that is when the Pak DGMO actually called on to Indian DGMO for a cessation of hostilities, or a ceasefire, as you may call it, right? Okay. Now we know, what happened. This was a brief roundup on the latest information on Operation Sindoor, and then there are many other, OSNet handles which have come. But one specific thing which is very interesting is that you have John Spencer, who's a war expert, urban warfare expert with Small World Journals. I'll put the appended tweet, copy of the tweet of his, so that you guys can have a look at it. So he talks about, how India has changed the paradigm by way of Operation Sindoor. वहाँ पे, I'll just quote the relevant lines. He says India's overwhelmingly success demonstrated something more enduring than the air power or the traditional warfare. And he says in Sindoor, India didn't just win, it demonstrated overwhelming military superiority against the Chinese-backed adversary. Then he goes on to say further, in the skies over Pakistan, India just didn't dominate, it redefined regional deterrence. The Pakistani defenses built largely around Chinese systems like LY-80, HQ-9, FM-90 were powerless to detect,
deter, and respond to the Indian strikes. And then he says further that India just didn't talk about reforms, it executed and it won. Basically citing about India's reform of Make in India, FDI in defense, and integration of systems from which I have talked about in my last video. He says India has become as lethal. India has become a master of the physics of lethality. The United States can learn from their success and model some of their changes on its own need. India's success and Ukraine's innovation should be a wake up call. They are building the war fighting models of future. The US is still operating with the Cold War machinery and Gulf War assumptions. The next war won't give US 5 years to prepare. It may not even give US 5 months to prepare. The lesson of Operation Sindoor is just not that India is riding, that the United States can fall behind. So a US expert who openly discusses about the tactical superiority of Indian defense forces on Pakistan, and he says that the BrahMos missile, a supersonic cruise missile co-developed with Russia but now largely manufactured by India, costs around 4.85 million per unit. Now that's a bit less than the Tomahawk cruise missile, which the US has around one to $2.5 million. But it goes at a bigger speed of Mach 3, and when integrated with Akash Tir, AI generated defense and integrated network, it gives you a bigger impact compared to the Patriot missile system. So this, I think this every one of you should read this analysis, and this is like literally what you say, a good display of uh, what urban new age warfare could be, and what this guy has said, that maybe the United States need to remodel, where we have a strategic objective, pinpointed military operation. We go in, fulfill our objective, and come out, and do not get trapped into a long elongated war like Israel is in Gaza now, or or you see US was trapped in Vietnam or Afghanistan, or Russia is now trapped in Ukraine. So technically, he said, the world needs to learn from India's pinpointed operations, strategically calculated how dominant they were on the Pakistani air bases, to the strategic use of the weaponry which India had, and all that was in Make in India or in a joint venture and integrated. So this is what this guy talks about. So probably like we need to talk, I think you all must go through this analysis. I'll share the link as well. Okay, now the Wall Street Journal has reported another very interesting factoid has come up. The Wall Street Journal has reported the father pursues the Trump diplomatic deal, the son chases the crypto deal. This is the Wall Street Journal article which was posted yesterday. Now the summary is the Stephen Witkoff, who is President Donald Trump's Middle Eastern ally, envoy. In his capacity, he has engaged with a lot of Muslim Middle Eastern leaders like UAE Sheikh bin Zayed, aiming to advance US, very basically US foreign policy. But Zach Witkoff, his son, who is the co-founder of World Liberty Foundation, a cryptocurrency firm in which the Trump family holds 60% stake. Now, WLF has flagship stable coin, that is USD1. It gained traction and notably $2 billion investment from Sheikh Tahun. Now, this investment positioned as the fifth largest stable coin in the market value. Now, the most interesting part is that WLF has also secured partnership with countries like Pakistan, Malaysia, Kyrgyzstan, aligning with the US diplomatic interest. So if अगर आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि कैसे जनरल मुनीर के साथ पाकिस्तान ने क्रिप्टो डीलिंग करी है, एंड नाउ वी अंडरस्टैंड कि उन्होंने कोई मिनरल पार्टनरशिप भी करी है
Balochistan ke liye, US State Department people were there to mine, Baloch rare earth minerals like gold, copper, lithium, etc. And in the meanwhile, you have the Stephen Witkoff's, son, as per Wall Street Journal, who's entered into these crypto ventures with Pakistan, Malaysia, and Kyrgyzstan. And even the Chinese firms are willing to invest in Trump's crypto ventures to avoid delisting. This was also reported a few days back. So we see a specter जहां पे अमेरिका के स्ट्रेटेजिक एलाइज मिडिल ईस्टर्न रीजन में, स्पेसिफिकली अरब एलाइज एंड टू एन एक्सटेंडेड अक्रॉस टू पाकिस्तान, आर इन्वेस्टिंग इनटू दिस. इसके कारण क्या है ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ. CPEC, Gwadar, Bandar Abbas, targeting China, and all that stuff I've talked. So I'm not going to, detain your time much on this. अब इस दौरान परसों शाम को मैंने ट्वीट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप अब बहुत जल्दी जापान, वियतनाम, यूरोपियन यूनियन, इंडिया और इन सब पे जाने वाले हैं, बिकॉज इनका ट्रेड रीसेट काम नहीं कर रहा है. इट्स फेलिंग. द बेसेंट प्लान हैजंट वर्कड. मैंने आपको बेसेंट प्लान क्या है मैं मेरे पिछले वीडियो में नीति शास्त्र के आप देख सकते हैं. एज एक्सपेक्टेड कल सुबह जापानीज प्रधानमंत्री का एक कॉल होता है व्हाट यू से अमेरिकन राष्ट्रपति के साथ, ट्रंप के साथ, जहाँ ट्रेड की नेगोशिएशन होती है. और जापानीज पर पीएम इशिबा बोलते हैं दैट वी आर नॉट, मिस्टर प्रेसिडेंट, हम लोग आप सब कुछ बात करने को तैयार है. आई मे इवन विजिट वेरी सून, बट वी आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर ट्रेड टर्म्स. यू विल हैव टू रोल बैक योर tariffs and your reciprocal tariffs, your, all that for any negotiation to begin. Plus, जापान करेंसी में दोबारा एक प्लाजा अकॉर्ड और येन को अप्रिशिएट करने के लिए और डॉलर को डीवैल्यू करने के लिए तैयार नहीं है. वो नेचुरल मार्केट फोर्सेस से हो तो बात अलग है, लेकिन इंटेंशनली इन अ प्लाजा अकॉर्ड वो करने को तैयार नहीं. एक्सपेक्टेड है राष्ट्रपति ट्रंप के अगर कोई सुन नहीं रहा है तो वो क्या करेंगे. तो फिर कल शाम को वो कल ना फाइनेंशियल टाइम्स में आर्टिकल छपता है दैट एप्पल इज मेकिंग 1.5 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट डिस्पाइट ट्रम्प्स थ्रेट ऑफ कि भाई इसको अमेरिका मूव करो, इंडिया में नहीं जाना चाहिए. एंड टिम कुक इज एक्चुअली अनफेस्ड. तो अब जैसे ये छपता है मॉर्निंग में, बाय आफ्टरनून वी हैव अ रिएक्शन फ्रॉम द व्हाइट हाउस व्हिच सेज ओके, so if Tim Cook wants to manufacture in India, then 25% tariff, and suddenly the Apple share tanks. अब ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की टारगेटिंग है, आप लोग समझ सकते हैं. अब इसके बारे में मैं पहले भी वीडियोस में बहुत बारी बोल चुका हूँ. एंड इस दौरान आप देखिए उसके बाद ये एक और ट्वीट आता है कि यूरोपियन यूनियन पे मैं 50% टैरिफ लगाऊंगा. ठीक है. उसके बाद जब तक ये और फिर मार्केट टैंक कर जाती है, बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी ड्रॉप करती हैं, लेकिन शाम तक आते आते स्कॉट बेसेंट आते हैं और टीवी पे कहते हैं नहीं नहीं ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक है, बिकॉज वी हैव नॉट बिगन, यूरोपियन यूनियन हैज नॉट बिगन द नेगोशिएशंस विद यूएसए एज टिल डेट. So now you see, like what is exactly happening over here. अब यहाँ पे we need to understand that non-trade barriers, कि अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी है वो है नॉन ट्रेड बैरियर्स को टारगेट करना. क्योंकि यूरोप ने तो बोला 0/0 टैरिफ डील ले लो, वियतनाम ने बोला 0/0 ले लो, इंडिया ने भी बोल दिया भाई 0/0 ले लो ना, खत्म करो. लेकिन ये लेने को तैयार नहीं हो, कहते नहीं हमें नॉन ट्रेड बैरियर्स चाहिए. तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड नॉन ट्रेड. अब नॉन ट्रेड बैरियर्स होते हैं जो एक कंट्री अपने क्रिटिकल सॉवरेन क्रिटिकल वर्टिकल्स को बचाती है. they try to save the critical sectors, their industries, their pharmaceutical giant. आप ऐसा एग्जांपल ले लीजिए कि अगर कोई $1 ट्रिलियन की टेक कंपनी है और यहाँ पर $10 बिलियन की कंपनियां हैं, एंड इफ वी डू नॉट सेव देम by non-trade barriers or including our low-scale manufacturing, so the big sharks will eat up the small fishes.
सो इट इज नेचुरल ना कि भाई ये कंट्रीज अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, बट क्योंकि अगर खाली टैरिफ डील होती है 0/0, जो फेज 1 में होने जा रहा है, जो कल CNBC ने भी रिपोर्ट कर दिया है, TV18 ने, 7-8 दिन में एक इंडिया और इसकी यूएस का फर्स्ट फेज 1 ऑफ द आने वाला है, जिसमें विल बी टॉकिंग अबाउट रिड्यूसिंग द टैरिफ टू 10%, and some exemptions will be given on the duties on the product, and 22nd reciprocal tariff will not be extended on India further, खाली 10% तक ही रहेगा. तो that 0-10 kind of a deal जो हमने लास्ट वीडियो में टॉक किया था, बात करी थी, वो ऑलमोस्ट एक आने वाली है, लेकिन नॉन ट्रेड बैरियर्स अभी डिस्कस नहीं. रियल रीजन है नॉन ट्रेड बैरियर्स. तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड नॉन ट्रेड बैरियर्स होते क्या हैं एंड व्हाट आर द क्रिटिकल नॉन ट्रेड बैरियर्स इन वेरियस कंट्रीज. अब नॉन ट्रेड बैरियर्स होते हैं जिससे आप मतलब ट्रेड के लिए नहीं, रेगुलेटरी और पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है जो हर कंट्री लगाती है अपने ट्रेड को बचाने के लिए. अब यूएस में है वो, अब चाइना में वो नॉन ट्रेड बैरियर्स हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड सब्सिडीज, स्टेट डायरेक्टेड सब्सिडीज, स्टेट ऑपरेटेड एंटरप्राइज उसको डिस्टॉर्ट करती हैं, उनको मिलता है. मेड इन चाइना 2025 जो डिजिटल लैंडस्केप डिस्टॉर्ट करता है. ओपेक टेक्निकल स्टैंडर्ड डेवलपमेंट है. मैंडेटरी इन कंट्री टेस्टिंग है फॉर इंटरनेशनली सर्टिफाइड गुड्स, जिसकी वजह से अमेरिकन कंपनीज के गुड्स नहीं वहां पहुंचते. डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फॉरेन फर्म्स इन साइबर सिक्योरिटी. डेटा लोकलाइजेशन मैंडेट चाइना में है. सेंसरशिप और कंट्रोल है यूएस टेक जाइंट्स के ऊपर, हमें पता है वहां फायरवॉल है. फॉरेन क्लाउड सर्विस को चाइनीज फर्म्स हैं ऑपरेट नहीं करने देती हैं. डिले इन ड्रग रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल्स. नॉन ट्रांसपेरेंट रीइंबर्समेंट ऑफ पॉलिसीज ऑफ फेवरिंग डोमेस्टिक फर्म. पुअर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फोर्समेंट थ्रू चाइनीज फर्म्स. ठीक है. And then unjustified agriculture measures on US beef, poultry, biotech, and lengthy approval processes. So basically, China regulatory framework, एक नॉन ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी, एक करेंसी का मतलब आर्टिफिशियली करेंसी को पैक करना, करेंसी वॉर में इंडल्ज, करेंसी मैनिपुलेशन में इंडल्ज करना, एक ओपेक सिस्टम रखा, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस. So through all these techniques, China technically, like puts a firewall between US and American economies. Like the Chinese companies are, openly exploiting the US open free trade, but the reverse cannot be possible because of Chinese barriers. तो ये non-trade barriers है. Similarly, Japan के साथ क्या है? Non-transparent rule making, healthcare और autos, because Japanese auto बड़े known है. Preference for Japan Pacific Standard and international norms. Auto and auto parts, basically road vehicles, certification practices, domestic producers, limited acceptance of US safety and emission certification. Insurance, government ties to Japan's insurance market access. Slow licensing, discriminatory treatment towards foreign insurance. कॉम्प्लेक्स फूड एडिटिव अप्रूवल्स, लेंदी GMO एंड बायोटेक क्रॉप जो वो लोग अप्रूव नहीं करते हैं. डिलेड मार्केट एक्सेस ड्यू टू नॉन ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग एंड स्लो अडॉप्शन ऑफ फॉरेन इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स इन फार्मास्यूटिकल्स. ये थे जापान के. जापान का मेनली ऑटो और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, ये अलाउ नहीं करते हैं इस पे लेंदी अप्रूवल प्रोसेस. अगेन रेगुलेटरी नॉन ट्रेड बैरियर्स. यूरोपियन यूनियन, यहाँ पे क्या है? GDPR का इनकंसिस्टेंसी, जो डेटा फ्लो इनका सबसे बड़ा डिजिटल डेटा का है. डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट US फर्म बाय डिजिटल सर्विसेज टैक्स, जिन्होंने गूगल पे टैक्स लगाया पीछे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का. फूड एंड एग्रीकल्चर में कहते हैं कि आपके जो GMO मॉडिफाइड फूड है वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि आप हार्मोन और बीफ और हार्मोन ट्रीटेड बीफ और पोल्ट्री बेचना चाहते हैं विच इज डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ, वो हम नहीं लेंगे. ठीक है. सिमिलरली वो कहते हैं कि आपका जो है जो आप में जो EU का जो ग्रीन डील है वो अमेरिकन LNG और अमेरिकन कंबस्टन इंजन ऑटो व्हीकल के खिलाफ है. ठीक है. आपके जो इन्वायरमेंटल और कार्बन स्टैंडर्ड्स है वो हिंडर करते हैं US कॉर्पोरेट्स को. और EU को जो है स्पेसिफिक एक लाइक लिमिटेड US स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन के हिसाब से वो काम नहीं करता है. ओके. अब आते हैं इंडिया को लेके. इंडिया के साथ उनके नॉन ट्रेड बैरियर्स क्या है कि भैया आप एग्रीकल्चर में जो मिथाइल जो ब्रोमाइड का जो फ्यूमिगेशन करते हैं वो कोल्ड एरियाज में वो अलाउ करिए.
सर्टेन वीड्स अलाउ करिए, पेस्ट अलाउड करिए, जिनका साइंटिफिक रिस्क और असेसमेंट अभी तक हुआ ही नहीं है। नॉन जीएमओ और जीएमओ सर्टिफिकेशन जो होती है बंद कर दीजिए, वो जीएमओ कॉर्न, जीएमओ जितना भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है वो इंडिया में अलाउ करिए। फ्रीक्वेंट बैन जो आप करते हैं पल्सेस और वीट में विदाउट डब्ल्यूटीओ नोटिफिकेशन वो बंद करिए, और एफएसएसएआई जो आपका जो अथॉरिटी है जो डिले करता है वो रिड्यूस करिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आप देते हैं फार्मर्स को वो रिड्यूस करिए, फेज आउट करिए। पीएचडी सिस्टम फेज आउट करिए। फिर फार्मास्यूटिकल और मेडिकल में वो कहते हैं प्राइस कंट्रोल्स लेके आइए, कॉरोनरी स्टेंट्स, नी इम्प्लांट्स, असेंशियल ड्रग्स, ये जो आप रिस्ट्रिक्ट कर मार्केट आप में रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं ना, ये बंद करिए। अब ये एसेंशियल मेडिकल डिवाइसेस है जो इंडिया में लाइक हम सस्ते तौर पे बनाते हैं एंड वी अलाउ प्राइस कंट्रोल्स, ताकि अगर स्टेंट्स लोगों को मिलेंगे, नी इम्प्लांट्स मिलेंगे, एसेंशियल ड्रग्स मिलेंगी, तो इट इज आवर पॉपुलेशन का वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ पर कैपिटा इनकम व्हाट अमेरिका हैज, so we need to support our population according to our economic standard और through US economic standard। तो इनकी डिमांड टोटली अनजस्टिफाइड डिमांड्स है अमेरिका की यहाँ पे। फिर वो कहते हैं नो डेटा एक्सक्लूसिविटी, प्रोटेक्शन फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है, डिलेड ड्रग अप्रूवल्स आप लोग देते हैं, सस्पेंशन ऑफ लाइसेंसेस और मेडिकल इक्विपमेंट यूएस एक्सपोर्टर्स पे, लैक ऑफ पेटेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, पेटेंट लॉस पे आप चेंज करिए, जो आपका कंपलसरी लाइसेंसिंग का जो एक जो आपका ऑप्शन है, जो आप कहते हैं कि कोई पैंडेमिक आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई, तो गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट कि भैया यहाँ पे पेटेंट रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई, मोनोपोली नहीं करेगी, यू हैव टू गिव एंड सप्लाई मेडिसिन एट अ चीप रेट बिकॉज हम एक हेल्थ इमरजेंसी में है। तो यूएस कहता है इसको भी सस्पेंड करिए, इसको डिलीट करिए। उनके लिए धंधों परमो धर्मा, प्रॉफिट्स ओवर पेशेंट्स, राइट। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हार्डवेयर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करिए 60 कैटेगरीज में, टेस्टिंग सर्टिफिकेशंस लैक्स करिए, इंपोर्ट लाइसेंसेस जो आपने लगाए हैं लैपटॉप्स और टैबलेट्स पे उसको रेगुलेट करिए। अब वो हमने इंपोर्ट लाइसेंसेस क्यों लगाए हैं? बिकॉज वी वांट आवर डोमेस्टिक लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग नॉट टू बी सफर्ड बाय द चाइनीज मेड अमेरिकन इंपोर्टेड और चाइनीज मेड लैपटॉप्स। साइबर सिक्योरिटी के जो रूल्स हैं उसको आप चेंज करिए, कस्टम वैल्यूएशन और पोर्ट डिलेज है उसको बढ़िए। देन आते हैं डिजिटल सर्विसेज पे। ये कहते हैं जो आपने आरबीआई गाइडलाइंस डाली हैं और डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में जो लोकल स्टोरेज ऑफ पर्सनल डेटा बोला, ये गलत है। डेटा लोकलाइजेशन ना करिए। अरे कैसे ना करें? ये हमारी डेटा सॉवरेंटी की बात है। हमारे कंज्यूमर का डेटा इंडिया में रहेगा कि यूएस में रहना चाहिए? कल को कोई कोई यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट हो जाए, कोई रायट हो जाए, कोई सोशल क्योस मचा दे, कोई कोई फॉरेन एजेंसी यहाँ पे कोई तमाशा क्रिएट करे, तो हमारे पास डेटा का एक्सेस ही ना हो, सो वी आर लेफ्ट ब्लाइंड कि कौन ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। कोई अरब स्प्रिंग करवाने की कोशिश कर रहा है, कोई यहाँ तख्ता पलट कराने की कोशिश करेगा, तो वी कांट अलाउ दैट। सिमिलरली वो कह रहे जो इंटरमीडिएट रूल्स हैं 2021 के, जो इनके ट्विटर और इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फोर्स करते हैं डेटा शेयर करने के लिए, कह रहे वो भी रिलैक्स कर दो। इंटरनेट शटडाउन जो आप करते हो ये गलत है, क्यों ना करें भाई। अगर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद पीस बनाने के लिए जरूरी था, मणिपुर में सिचुएशन कंट्रोल में लाने के लिए इंटरनेट शटडाउन जरूरी थे, तो हमें करने पड़ेंगे डिस्टर्ब एरियाज में। अनफॉर्चुनेटली वी लिव इन सच अ जियोग्राफी, हम यूएस की तरह उतने इम्यून नहीं है इन चीजों से। फिर वो आते हैं ऑटो सेक्टर। वो कहते हैं कि आप में जो पीएलआई स्कीम में जो आप प्रोक्योरमेंट रिस्ट्रिक्ट करते हैं फॉरेन की, वो हटाइए। आपके जो एमिशन स्टैंडर्ड्स और क्रैश स्टैंडर्ड्स है वो रिलैक्स करिए। डिलेड अप्रूवल ऐड करिए। ईवी मेकर को जो आप सब्सिडी देते हैं वो बंद करिए। अब अगर हम ये ऑटोमोटिव, डिजिटल, ईटी, हार्डवेयर, फार्मा, एग्रीकल्चर इंडिया में, डिजिटल सर्विसेज ईयू में, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, इंश्योरेंस, ऑटोज जापान में, और बाकी नॉन ट्रेड बैरियर्स चाइना में, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, डिजिटल ट्रेड फ्लो सर्टिफिकेशन, एसओईज, ठीक है, एंड आईपीआर, वहाँ पे मेड इन चाइना, करेंसी मैनिपुलेशन, अगर ये सब चीज सारी कंट्रीज बंद कर देंगी
तो ये कहने का यूएस का तात्पर्य यही है कि आइए अपने आप को डी इंडस्ट्रियलाइज करिए और हमें री इंडस्ट्रियलाइजेशन का मौका दीजिए। प्लीज अमेरिकन एम्पायर को 20 साल के लिए और जिंदा रखिए और डॉलर स्कीम को चलने दीजिए। ये है इनका मंशा, ये इनकी इच्छा है, ये वो चाहते हैं। और ये नॉन ट्रेड बैरियर्स पे ये सारी कंट्रीज मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए यूएस, अगर आप पीटर नवारो का देखेंगे, जब जो स्पेसिफिकली जब यूरोप का किस्सा हुआ, जब यूरोप ने 0/0 टैरिफ डील बोली, तो एलन मस्क ने कहा हाँ कर दो। पीटर नवारो आके टीवी पे कहते नहीं, ये नहीं होगा, हमें नॉन ट्रेड बैरियर हटाने हैं। तो आप देखेंगे फेज 1 भी जो इंडिया के साथ डील कर रहे हैं उसमें खाली टैरिफ का भी है। फेज 2 में, फेज 3 में भी बहुत नौटंकी ये लोग करेंगे, बिकॉज इनको नॉन ट्रेड बैरियर हटाने हैं। इनको एलाई शोरिंग नहीं करनी है, इनको नियर शोरिंग और रीशोरिंग करनी है। इनको आईफोन्स और ये सारी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सारा फार्मा, इनको अमेरिका लेके जाना है, ठीक है। और अगर ये अमेरिका लेके जाएंगे तो आप सोचिए जो $1000 का आईफोन है वो $3500 का हो जाएगा। तो क्या इवन विद 25% एप्पल इज स्टिल मैन्युफैक्चरिंग अ चीपर आईफोन इन इंडिया कंपेयर टू व्हाट यू से यूएसए। बट आप लोग ये ध्यान रखिए, अगर 25% टैरिफ लगता है स्मार्टफोन इंडस्ट्री पे, उन्होंने कहा कल एप्पल नहीं सैमसंग पे भी लगाऊंगा मैं, तो अगर 25% टैरिफ लगता है कि नॉन यूएस मैन्युफैक्चर्ड स्मार्टफोन में, तो वो 25% टैरिफ एंड इंडिया पे अगर सपोज करो स्मार्टफोन पे लगता है, चाइना में 30% है, तो देन द एडवांटेज विच इंडिया हैज इट माइट लूज टू चाइना। 25% में 30% में दिस हार्डली डिफरेंस 4-5%। हाँ, बॉटम लाइन में 5% मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट मे बी नॉट ओवरऑल। 25% कहने को है, गिवन द हाउ यूएस में जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, द हाउ द कॉस्ट इज पास्ड ऑन, थोड़ा एप्पल बेयर करेगा, थोड़ा कंज्यूमर को कॉन्ट्रैक्ट से पास ऑन करेगा, तो इट मे नॉट बी 25%, मे बी 10-15% इंक्रीज, 15% के इंक्रीज, बट स्टिल दैट इज इनफ टू ईट एप्पल्स प्रॉफिट्स। And this is going to hit their innovation and R&D budgets. तो राष्ट्रपति ट्रंप अपनी ही कंपनीज की मारना चाहते हैं। सिमिलर काम राष्ट्रपति ट्रंप ना फार्मा में कर रहे हैं। अभी उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया कि रिड्यूस the what you say the pharma tariffs to, I mean the pharma prices of American pharma to by 80% to compete with the Indian pharma and the Chinese pharma. अब बताइए, अमेरिकन फार्मा इज ऑलवेज नोन फॉर कि वो लोग R&D में बजट करते थे, हाई एंड इनोवेट करते थे, वो ड्रग्स बनाते थे, वो अमेरिका इनोवेशन के लिए जाना जाता था, चाहे वो फार्मा हो चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो जब वो इनोवेट करते थे, अब अगर वो 80% लोअर पे काटेंगे, जब उनके पास R&D स्पेंड और बजट ही नहीं होंगे, तो वो इनोवेट कहां से करेंगे? ये राष्ट्रपति ट्रंप अपनी ही कंट्रीज को, अपनी ही इंडस्ट्री की कैसे मार रहे हैं और किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं यूएस। और अगर ये 80% पे लेके आते हैं, लेकिन इस मूव का आप बैकड्रॉप समझिए, क्योंकि अब यूएस हेल्थ केयर को इंश्योर करने के लिए कि प्राइसेस ना बढ़े, ड्रग प्राइसेस ना बढ़े, इन्होंने पहले अमेरिकन फार्मा पे प्राइस कंट्रोल लगाया कि अब 80% से नीचे 80% तक आप एसेंशियल ड्रग्स को और क्रिटिकल ड्रग्स को प्राइसेस रिड्यूस करें। अब इनका नेक्स्ट स्टेप होगा इंडियन जेनेरिक फार्मा और चाइनीज जेनेरिक फार्मा पे टैरिफ लगाना, सो दैट यहां पे ड्रग प्राइसेस अगर यहां पे इंडियन ड्रग्स और चाइनीज ड्रग के प्राइसेस बढ़ती भी हैं तो अमेरिकन कंज्यूमर्स को फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा इंडिया एंड चाइना विल स्टैंड टू बी लूजर्स, बिकॉज डिमांड उतनी इंडिया से फिर नहीं आएगी कंपैरेटिवली, जो यूएस जेनेरिक ऑलरेडी 80% लॉस पे सप्लाई कर रहे हैं। So he is willing to make US companies suffer for a short term, for a medium term gain of destroying Indian and Chinese pharmaceutical companies. बिकॉज इंडिया जो जेनरिक बनाता है फार्मा, उस पर 70% जो एपीआई है वो चाइना से आते, तो ये सब चेन, सप्लाई चेन इंटरलिंक्ड है। इस सप्लाई चेन को सत्यानाश करने के लिए और अमेरिकन को फार्मा को रीशोर करने के लिए
ये अपनी फार्मा को कहते हैं यू गो थ्रू अ शॉर्ट टर्म पेन ऑफ 80% रिडक्शन इन योर प्रॉफिट्स. कोई बात नहीं, R&D का स्पेंड हम बाद में देख लेंगे, लेकिन वी मेक श्योर दैट इंडियन जेनेरिक फार्मा एंड चाइनीज जेनेरिक फार्मा इज डिस्ट्रॉयड. ये है इनकी स्ट्रैटेजी, ये प्राइस कंट्रोल. सिमिलरली इन्होंने वॉलमार्ट और अमेजोन को बोला ईट योर टैरिफ्स, अपना टैरिफ आप लोग खुद खाओ, खुद लगाओ. डेयर यू पास ऑन द टैरिफ्स टू कंज्यूमर, बिकॉज हमने पिछले वीडियो में बात किया था, आपने वीडियो कंज्यूमर में पास करो साला इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा. ये गलत है, ये ऐसे नहीं करने का. ठीक है. फिर अब इन्होंने कैपिटल कंट्रोल भी लगा दिए, 3.5% ऑन any remittances outside America. If you send 3.5% capital control है कि कितना पैसा बाहर लेके जा सकते हो, कितना नहीं लेके जा सकते हो, इतना पैसा आपको अमेरिका में री इन्वेस्ट करेगा. So America is technically behaving like a third world country, you know, where authoritarian dictatorships through executive orders and diktats, ad hoc diktats, are dictating the market through price controls and capital controls. This is unheard of. And this is very unlike America, what we have known for the last century. So now you understand the gravity of change which President Trump is bringing to the table. और अगर सुप्रीम कोर्ट उनका स्टे करता तो कहते हैं ये वो भी गलत है, हम कोर्ट की नहीं मानेंगे. कांग्रेस को भी धमकी है कि आप कांग्रेस जो है, अब कांग्रेस ने इनका वो बिग ब्यूटीफुल बिल पास किया और उस बिग ब्यूटीफुल में जो टैक्स कट्स हैं जो 2017 में इन्होंने दिए थे वो इन्होंने परमानेंट कर दिए. अब दैट विल लीड टू अ डेफिसिट ऑफ $3.6 ट्रिलियन डेट ऐड होगा अनदर 3 years में 2028 तक, इन एडिशन टू $34 ट्रिलियन विच दे हैव. ये कौन सा प्लान है, ये कौन सा चूरन बेचा जा रहा है अमेरिकी पब्लिक को. तो बेसिकली यू सी प्रेसिडेंट ट्रंप ऑपरेटिंग थ्रू हिज बिलियनर्स, his known agents and his known colleagues through cryptos, getting deals, getting mining contracts, rare earths, oil contracts. ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आया है जी मिडिल ईस्ट से हम लोगों को, यूएई से, कतर से, सऊदी अरेबिया से, इवन इफ यू हैव टू गो एंड किस द एस ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड. तो ये सब चीज देखते हुए अगर आप देख रहे हो तो दिस इज very unlike the America we knew for last 70-75 years since the World War II. And this is hurting not only the Wall Street, but probably American consumer and even US dollar as a reserve currency, which brings me to the final part of my podcast today. And the final podcast is on, bond. Okay. So now we see कि जापान में जो यील्ड कर्व्स है, सी जापान का जो बॉन्ड का जो पूरा का पूरा जो सिचुएशन था, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑन दैट. एक सेकेंड. ओके, करेक्ट. सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जापान ने ऑफ लेट मतलब काफी सालों से लोअर इंटरेस्ट रेट रखे हुए थे. ठीक है. और वो लोअर इंटरेस्ट रेट इसलिए रखे हुए थे, जापान वाज ऑपरेटिंग ऑन अ मॉडल ऑफ 0.05 का काइंड ऑफ interest rates. So what people used to do is they used to buy Japanese Japanese interest, जापान से पैसा लेते थे, यूएस में इन्वेस्ट करते थे और अल्टीमेटली वहां से आर्बिट्राज कमा के they used to make profit, and that used to be called yen carry trade. Borrow in yen at very low interest rates, take it, convert it to dollar, take it to US through other assets, make huge money, and then you actually technically make the arbitrage and then come to it.
बट 2024 में जापान में इन्फ्लेशन हो जाता है 2%, 40 साल का हाई टच करता है, in a country where the debt to GDP ratio is 250%, developed countries. अब Bank of Japan is forced to uh, cut rates, or sorry, hike rates, because they have to technically, they have to technically save their, get the inflation down in control, and their balance sheet has expanded beyond $5 trillion, जो उनको reduce करना है. Interest payments on Japanese debt and consuming over 20% of tax revenues and straining fiscal capacities. Right? जापान की जो yields हैं, 30-year yield है, 40-year yields है, they spike to 3% and 3.44%, highest in decades. अब वो yield कब, अब बैंक ऑफ जापान जब अपना वो लोअर कर रहा है, इंटरेस्ट रेट्स लोअर, आई मीन अपना क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर रहा है, बैलेंस शीट ट्रिम कर रहा है, बैलेंस शीट रिडक्शन हो रही है $5 trillion, इट कैन नॉट डू बॉन्ड बाइंग एंड डू क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन. सो इफ द बॉन्ड, इस दौरान जो आपकी जो टैरिफ डील आई, उसकी जो ट्रेड टैरिफ्स आए और जो डिस्प्यूट खड़ा हुआ, उसके चक्कर में पूरा का पूरा जापानीज एक्सपोर्ट्स हैम्पर हुए और बॉन्ड यील्ड स्पाइक कर गए बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी, because people sell equity and buy bonds during any crisis. That is a usual course of long-term investors, institutional investors, hedge funds. अब इसमें अब यूएस बॉन्ड यील्ड ऑलरेडी 4.5 पे चल रही हैं, 10-year yield और 5-year yield तो 10 के 30-year yield तो 5 के आसपास है, मॉर्गेज रेट 10% पे पहुंच रहे हैं ऑलरेडी. तो अगर यूएस यील्ड 4.5% पे है एंड जापानीज बॉन्ड जो हैं आपको 3.4 3.5 दे रहा है, सो व्हाई वुड एनी वाई गो टू द यूएस बॉन्ड्स. अच्छा, अब अगर जापानीज बॉन्ड को बाय आउट करना है, जापानीज इंटरेस्ट रेट्स को कम करना है, अदरवाइज द येन कैरी ट्रेड विल ब्लो अप, तो समवन हैज टू बाय बैक दोज और बाय एडिशनल बॉन्ड्स. वो कौन बाय कर सकता है? वो जापानीज हेज फंड्स कर सकते हैं. अब जापानीज हेज फंड और जापानीज इंस्टीट्यूशंस, अब उनको उनका सारा पैसा बाहर लगा होता है, बिकॉज उन्होंने येन कैरी लोअर रेट पे लेके बाहर लगा रखा है, यूएस ट्रेजरीज में लगा रखा है. जापान इज अ ट्रेजरी होल्डर ऑफ $1.2 trillion. सो अब अगर वहां पे जापानीज इन्वेस्टर यूएस ट्रेजरीज बेचना चालू करेंगे और पैसा कन्वर्ट करके येन में लेके आएंगे, two things will happen. The American bond yield will spike, leading to a further deterioration of American economy and financial health, which might break President Trump's reset, even force Fed into acting. Otherwise, दिक्कत हो जाएगी. Mortgage rate, interest will go sky off the roof, and उनको debt service करने में भी दिक्कत हो जाएगा. अब ये लॉजिकल कंक्लूजन है कि ये होना बाकी, तभी जापान की आप बॉन्ड यील्ड्स और अमेरिकन बॉन्ड यील्ड्स को आप रेगुलरली वॉच करिए, 10-year 30-year यील्ड्स, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे खेल क्या है. अब अगर वो येन में कन्वर्ट करेंगे तो डॉलर वीक होता है, येन स्ट्रेंथन होता है. अब ये ट्रिगर करेगा इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन यूएस एंड ग्लोबल मार्केट, वोलेटिलिटी बढ़ेगी. अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फेड रेट कट कैसे करेगा? फेड रेट कट कैसे होगा? तो ट्रम्प का जो रीसेट है वो फिर दोबारा फ्लॉप होता है. अब इस दौरान जापानीज इकोनॉमी जो है, सुनने में आया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है. जापान बैंक फेस कर रहे हैं अनरियलाइज्ड लॉसेस लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पे, ठीक है. ग्लोबल बॉन्ड मार्केट्स में may lose anchor as well because Japan was a keystone in global yield supply zones at lower interest rates. The Fed will face a choice. या तो आप यील्ड्स को स्पाइक करने दो और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आने दो, या इंटरवीन करो और रिस्किंग रिन्यूड इन्फ्लेशन एंड डॉलर डिक्लाइन.
और कॉन्फिडेंस इन द सॉवरेन डेट विल फॉल। एंड ऑलरेडी जेपी मॉर्गन से लेके मूडीज तो इनका रेटिंग भी डाउनग्रेड कर चुका है इनके फाइनेंशियल हेल्थ को लेके। यहां तक कि आईएमएफ ने भी कह दिया है कि भैया अपना डेट का कुछ करिए। द सॉवरेन डेट रिजीम अगर यहाँ पे कोलैप्स करती है, so Japan will be the fuse, but the real bomb will explode in US. If Japanese bond yen carry trade unwinds, Japanese hedge funds are forced to sell US treasuries, buy back into Japanese bonds, then yes, the Japanese and the world economy will go through a turmoil, but the biggest blow up will happen in USA. So this is a problem which is facing not only President Trump, Japan, but even the global economy. So we need to be very careful. अब क्या बैंक ऑफ जापान के पास क्या टूल्स हैं, क्या वो कर सकते हैं ऑन द बेस्ट पॉसिबल टूल? क्या टूल्स तो बहुत सारे हैं, जैसे वो यील्ड कर्व कंट्रोल कर सकते हैं, वो अग्रेसिव क्वांटिटेटिव ईजिंग कर सकते हैं, स्टेल्थ क्यूई कर सकते हैं बाय लिमिटेड ऑक्शंस, एक वर्बल इंटरवेंशन फॉरवर्ड गाइडेंस दे सकते हैं, या फाइनेंस मिनिस्टर के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, टाइटन कैपिटल कंट्रोल्स कर सकते हैं। बट जो मोस्ट लाइकली वो करेंगे इज ग्रेजुअल रीइंट्रोडक्शन ऑफ बॉन्ड परचेजेस क्यूई लाइट combined with selective forward guidance steadily. बट वहां डर ये है कि अगर यील्ड्स जापान की बढ़ती रही और फुल यील्ड कर्व जो है आगे हो गया और उसके बाद उनको अग्रेसिव क्यूई करने पड़ रहा है, तो येन द कॉस्ट ऑफ येन डेप्रिसिएशन एंड रिन्यूड मार्केट वॉलेटिलिटी आ जाएगी। अब इसमें एक और चीज आती है कि क्या सऊदी अरेबिया लाइक कंट्रीज इनको मदद कर सकती हैं? जी, कुछ हद तक कर सकती हैं, बट बहुत लिमिटेड एक्सटेंट है। $200 ट्रिलियन का जो सऊदी दे रहा है, 200 बिलियन, आई स्टैंड करेक्टेड, 200 बिलियन और 500 बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो डील हुई है, दे आर जस्ट नॉट बाइंग इनटू यूएस ट्रेजरीज, बट दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट in critical US infrastructure and US dollar trade and all that by Emiratis, by Qataris, by Saudi. So overall अगर आप मोटा मोटे तौर पे देखेंगे तो राष्ट्रपति ट्रंप का जो एक ट्रेड रीसेट है वो एक फेलियर की तरफ बढ़ रहा है। अब जैसे कल स्कॉट बेसेंट से हमने देखा कि उनको डील्स चाहिए टू शो अप, टू सेल टू हिज मेगा बेस, even minor non-trade barrier reductions by India or other countries, and substantial tariff reduction and investment commitments by US companies and global corporations Trump will be able to sell to his public that, look, I got this for you. This will generate this investment, this will generate this employment. बट अगर ये आगे बढ़ता है सिलसिला, ट्रेड वॉर डीपन होती है, एशियन पावर्स नहीं मानती है मैन्युफैक्चरिंग आर्क, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, चाइना और इंडिया वाली, सो देन दिस विल लीड टू अ बिगर ट्रेड फ्रैक्चर ऑफ सप्लाई चेन्स, where America is looking to deindustrialize these Asian powers and reindustrialize America to make America great again. This is the target which our listeners, हमारे listeners को और हमारे viewers को ये समझना बहुत जरूरी है। So ये का पूरा ट्रेड रीसेट, एक पूरा chaotic वर्ल्ड जहां पे ये बांग्लादेश में ऑलरेडी इनके बंदे उतर चुके हैं, वहां बांग्लादेश में यूनेस को हटाने के लिए बांग्लादेशी मिलिट्री लग गई है कि आप जाइए और एक इंटरिम इलेक्शन होल्ड करिए, जो बीएनपीपी चाहती है और जमात भी चाहती है, और बीएनपी जमात आर द ओरिजिनल फ्रंट्स ऑफ Washington DC and backed by Rawalpindi, and Jamaat is nothing but a face of Muslim Brotherhood in Bangladesh, जिनके साथ टर्की भी कोऑपरेट कर रहा है।
तो एक इंडो पैसिफिक जो आप जो कयास देखेंगे ईरान को लेके, ईरान डील को लेके, जहां ये नेतन्याहू को साइडलाइन कर रहे हैं, कह रहे हैं जीरो एनरिचमेंट कर. दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एंड फ्रैंकली नॉट एक्सेप्टेबल. जीरो, यू कैन अंडरस्टैंड जीरो न्यूक्लियर बॉम्ब, बट जीरो न्यूक्लियर एनरिचमेंट, भैया पावर जनरेशन भी चाहिए कि नहीं चाहिए? और उनके पीछे, एंड द ऑस्टेंसिबल रीजन टू गो आफ्टर फॉर अमेरिका, टू गो आफ्टर ईरान इज बिकॉज भैया कि उनको उनको चाइना का वो जो 25 साल की $400 बिलियन की डील है वो खटक रही है, उनको वो हटाना है. हम पहले बात कर चुके हैं. नेतन्याहू को वो इसीलिए रिस्ट्रेन कर रहे हैं कि भाई रुक जा, मेरा रीसेट बर्बाद हो जाएगा. और आपको ये भी जानना जरूरी है कि अगर जो इस्लामिक बॉम्ब नाम की जो एक किताब है जो एक अमेरिकन ऑथर ने लिखी है, वहां पर ये ओपनली बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान के बॉम्ब के न्यूक्लियर प्लांट के तौर पे, जब न्यूक्लियर बॉम्ब का प्लान हुआ था 71 वॉर के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो में, so then you had Mohammad Gaddafi of Libya who started bankrolling the Pakistan's nuclear program. You had Shah of Iran donate millions of dollars at the Lahore conference, ठीक है, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जहां पे उन्होंने कहा कि भैया अगर ऑल सिविलाइज, जहां पे जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला कि ऑल सिविलाइजेशंस हैव अ बॉम्ब, the Hindus have it, the Jewish have it, the communists have it, the Christians have it, so why can't we have an Islamic bomb? ये जुल्फिकार अली भुट्टो की जस्टिफिकेशन है जो इस्लामिक बॉम्ब नाम की किताब में लिखी हुई है. आप चाहे तो अमेजोन पे पढ़ सकते हैं इसको लेके. मैंने इसके स्निपेट्स टाइमलाइन पे भी शेयर किए थे क्योंकि आई वाज रीडिंग थ्रू इट. वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किंग फैजल ऑफ सऊदी अरेबिया, मोहम्मद गद्दाफी ऑफ लीबिया, इवन शाह ऑफ ईरान, ऑल वर फंडिंग एन इस्लामिक बॉम्ब और पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब प्रोग्राम. यहां तक कि French and Canadians were equally part. They were double dealing. They were playing both sides, giving reactors to India as well as nuclear fuel to India as well as to Pakistan during that time. 60s and 70s में इतना proliferation regime नहीं था. 70s के बाद ये टाइट होता गया तो दिक्कत होती गई. तो इंडिया ने पहला टेस्ट प्लूटोनियम का रीप्रोसेसिंग का 74 में कर लिया. तो 74 के बाद पाकिस्तान वेंट क्रेजी. देन EQ खान नेटवर्क आया, उसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने बातचीत कर ली है EQ खान नेटवर्क के बारे में. मेरे मित्र के साथ हम लोगों ने बात किया EQ खान नेटवर्क के बारे में. सो knowing all this, so we understand कि जो पूरा chaos क्रिएट किया जा रहा है, क्रिप्टो डील्स, ट्रेड टैरिफ, ये दिस इज अ प्रेसिडेंसी विच इज नाउ बिहेविंग लाइक अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, जहाँ पे सुबह मतलब there's a very famous meme floating on. I'll put famous meme putting on, thanks to one of my friends, I'll putting going on the social media, where we said, oh, the Chinese, the Xi Jinping and the Donald Trump get up in the morning. Xi Jinping throws a dart on the world map and said, "This area is mine." Chinese are famous now for their cartography maps, 9 dash line and all that. कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये मेरे empire sharing था, ये मेरे empire sharing था. And Donald Trump similarly gets up in the morning and throws a dart. कहते हैं यहाँ 30% tariff, 20% tariff, 10% tariff. So we have some crazy times, but the silver lining is that Besant ने जैसे बोला कि these are negotiating tactics. And I sincerely hope this 50% जो टैरिफ जो वो कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन पे लगाने का, these are negotiation tactic, because Europe and USA combined contributes 40% of the world's GDP, and it would be suicidal for the markets to go for that. और US treasuries में already trust erode हो रहा है, weaken हो रहा है. No one wants to buy the US debt because it is so inflated, and given uncertainty of the US policy, कभी 10%, कभी 20%, कभी 40%, this is not how global companies with supply chains across the world are going to function. The global economy is slowly getting dysfunctional. So that was the purpose of this weekly roundup. I really hope that आप लोगों को ये पसंद आया. कुछ अगर 19-20 हुआ हो तो kindly excuse me for that. And do like and subscribe the video. Do like and share the video with your friends, and subscribe to my channel Niti Shastra India on YouTube, and or even on Substack, my nitishastra.substack.com, and even we have the same channel Niti Shastra on Apple Podcast and Spotify.
सो डू जॉइन अस, होपफुली नेक्स्ट वीक आपके लिए एक और एक वीडियो लेके आएंगे ऑन दिस, एंड आई सिंसियरली होप यू ऑल लाइक इट. थैंक यू वंस अगेन. नमस्कार.